پاک چین دوستی لازوال، دفاعی شعبے میں تعاون بے مثال، کھلے سمندر میں مشترکہ مشقیں، ہر مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، امن کی خواہش کمزوری نہیں، پاک بحریہ کے سربراہ کا دشمن کو پیغام۔ کنٹرول لائن پر بھارتی جارحیت کے شکار 4 بچے آزاد کشمیر میں سپرد خاک، کیل سیکٹر میں دشمن کی پھر بلا اشتعال گولہ باری۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی ثابت، سانحہ مچل پر 6 سال بعد سینٹرل انفارمیشن کمیشن نے فیصلہ دے دیا، فوج سے جعلی مقابلے میں ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا ریکارڈ طلب۔ پاکستان میں تیار پہلی 8x8 فوجی گاڑی کی رونمائی، الخالد ٹینک، JF-17 اور سپر مشاق ایئر کرافٹ سج گئے، کراچی میں دفاعی نمائش کی تیاریاں مکمل، 34 ممالک کی 418 کمپنیز سٹالز لگائیں گی۔ چند ہفتے بعد پاکستان واپسی کا اعلان، آصف زرداری نے عمران خان کو انوکھا لاڈلا کہہ دیا، کہتے ہیں کھیلن کو مانگے چاند کا مطلب پرائم منسٹر شپ، بلاول کی داتا دربار جا کر چاچا کے لیے دعا۔ کہ December 27th تک every single one of our 4 demands will be met inshallah۔ چاچا کے لیے میرا دعا۔ پاناما کیس میں پی ٹی آئی نے بابر اعوان سے امید لگا لی، عمران خان نے وکیل مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا، نعیم الحق کی تصدیق۔ آف شور کمپنیز کے مالک بھی احتساب کا مطالبہ کر رہے ہیں، اسفندیار بنی کا طنز، کہتے ہیں ہر طرح کی کرپشن اور قرض معاف کرانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ کاف لیگ اپوزیشن جماعتوں کو ایک پیش پر لانے کی کوشش کرنے لگی، پرویز الہی کا کہنا ہے چھوٹے شہروں کے لوگ جھولیاں اٹھا کر حکومت جانے کی دعائیں کر رہے ہیں۔ لاہور میں علماء مشائخ کانفرنس، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفاذ، جعلی پیروں کے خلاف کارروائی اور مزارات کی حفاظت کا مطالبہ، سب کو سعودیہ سے کھجوریں ملتی ہیں، یہ کیسے حکمران ہیں جنہیں اسٹیل مل ملتی ہے؟ سراج الحق کا سوال۔ کیا دبئی یاترا کے بعد مصطفیٰ کمال میں تبدیلی آ گئی؟ ورکرز کنونشن میں متحدہ بانی پر تنقید، نا فاروق ستار کا ذکر، کہتے ہیں مرہم رکھنے والے ہی زخم چاٹ رہے ہیں، نظام کی تبدیلی ضروری ہو گئی۔ کراچی میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو چھاپے اور گرفتاری سے پہلے SSP رینک کے افسر کو بتانے کی پابندی، ایڈیشنل IG CTD نے حکم جاری کر دیا۔ کراچی میں گلشن معمار لیبر اسکوائر خالی کرانے پر قابضین مشتعل، علاقہ میدان جنگ بن گیا، خودکشی اور خودسوزی کی کوشش ناکام، انتظامیہ نے 24 نومبر تک مہلت دے دی۔ حیدرآباد میں اپنے ہی 2 بچوں اور ماں کو یرغمال بنانے والا ڈاکٹر ابراہیم عالمانی 2 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے، برآمد کی گئی پستول سے متعلق تحقیقات۔ چہلم امام حسین پر سیکیورٹی انتظامات، کراچی میں آج رات سے MA جناح روڈ بند، فورسز کا فلیگ مارچ، کوئٹہ میں دفعہ 144 نافذ، لاہور میں عزاداروں کی بائیو میٹرک تصدیق کا فیصلہ۔ ہاتھ بن بن عرضاں کر دی، ایتھے سب دی جھولی بھر دی، ایتھے سب دی جھولی بھر دی، آئی منی کرن دیدار سونے داتا دیدار کے خواہش مند پہنچ گئے دربار، داتا صاحب کے عرس میں ہزاروں افراد کی شرکت، بلاول بھٹو زرداری کی بھی حاضری۔ 6,800 6300 گلی گلی بکنے لگی مچھلی، سردیاں آتے ہی پنڈی کی تاریخی منڈی آباد، جل کی رانی راتوں رات ہاتھوں ہاتھ فروخت۔ چڑیا گھر کی مفت سیر، ننھے فرشتوں کا رنگوں کی زبان میں امن کا پیغام، بلدیہ عظمیٰ کراچی نے بچوں کے عالمی دن کو یادگار بنا دیا۔ بھارتی شہر کانپور میں ہولناک ٹرین حادثہ، ہلاکتوں کی تعداد 120 ہو گئی۔
تو کسے وکیل کریں، یہ مشکل حل ہو گئی۔ تحریک انصاف کو پاناما لیکس کیس میں وکیل مل گیا۔ بابر اعوان کو وکیل مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا جب اعتزاز احسن نے دامن مچا لیا اور صرف مشوروں پر اکتفا کیا۔ پی ٹی آئی ترجمان نعیم الحق نے بھی فیصلے کی تصدیق کر دی ہے۔ گئے خان تو آ گئے آوان، تحریک انصاف کو پاناما لیکس کیس میں وکیل مل گیا اور حامد خان کے جانے کے بعد بابر اعوان کی شکل میں وکیل مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ نعیم الحق نے کیا کہا آپ بھی سنیے۔ ایسے بلکہ میں نے جب ہم اسلام آباد سے روانہ ہوئے تو جہازی میں نے پوچھا کہ آپ نے کیا فیصلہ کیا، تو انہوں نے بابر اعوان کا نام لیا تھا، مگر کیونکہ ابھی بابر اعوان صاحب سے عمران خان صاحب کی بات نہیں ہوئی ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک دن کا انتظار ضروری ہے۔ لیکن فیصلہ ہو گیا، ڈیسیجن ہو گیا۔ عمران خان صاحب نے خود مجھے یہ بتایا تھا۔ بحیرہ عرب میں پاک چین مشترکہ بحری مشقوں سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں تو امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، یہ کہنا ہے چیف آف نیول سٹاف کا۔ ساتھ کہتے ہیں کہ دشمن کی ہر مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ اللہ پاک چین مشترکہ مشقوں سے بحری اشتراک کو فروغ بھی ملے گا، ساتھ اس بات کی دعا بھی انہوں نے کی ہے۔ بحیرہ عرب میں پاک چین مشترکہ بحری مشقوں سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ یہ کہنا ہے کہ امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ چیف آف نیول سٹاف نے مزید کہا کہ دشمن کی ہر مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ چین دوستی لازوال، دفاعی شعبے میں تعاون بھی بے مثال۔ بحیرہ عرب کے کھلے پانیوں میں پاک چین مشترکہ بحری مشقیں جاری۔ بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد ذکاء اللہ نے مشقوں کا معائنہ کیا۔ ایڈمرل محمد ذکاء اللہ اور چینی افسروں کے درمیان پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال بھی ہوا۔ پاک بحریہ کے سربراہ کا کہنا تھا خطے میں امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، ہر مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ مشترکہ مشقوں سے بحری اشتراک کو فروغ ملے گا۔ نیول چیف نے پی این یونٹس کا دورہ بھی کیا اور افسروں اور جوانوں کی کارکردگی کو سراہا۔ لیکن وحشی کو سکون سے کیا مطلب؟ کنٹرول لائن پر بھارتی جارحیت کا شکار 4 بچے آزاد کشمیر میں سپرد خاک کر دیے گئے۔ کیل سیکٹر میں دشمن کی بلا اشتعال فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا، جس پر پاک فوج کو بھرپور جوابی کارروائی کرنا پڑی۔ مودی سرکار پر سوار جنگی جنون کم نہ ہو سکا، کنٹرول لائن پر اشتعال انگیزی کا سلسلہ جاری۔ بھارتی فوج نے کیل سیکٹر میں بھی شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ سرحدی خلاف ورزی کے دوران بلا اشتعال فائرنگ کی گئی، مارٹر گولے بھی برسائے۔ پاک فوج نے بھرپور جوابی کارروائی کر کے دشمن کی گنز خاموش کرا دی۔ ادھر کیری سیکٹر میں بھارتی درندگی کا نشانہ بننے والے 4 معصوم بچوں کی چڑھوئی میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی، جس میں اپوزیشن لیڈر آزاد کشمیر اسمبلی چودھری یاسین، فوجی افسروں اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ہفتے کے روز بھارتی فائرنگ سے 4 سالہ ربا، 7 سالہ فائزہ، 8 سالہ شازیہ اور شہزاد شہید ہو گئے تھے۔
इस मामले पर आवाज़ भी उठाई गई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सरीन ने GHQ में हुक्काम से मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान ने खूई रट्टा में 4 बच्चों की शहादत पर अक़वाम मुत्तहिदा से तहकीकात की दरख्वास्त की है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने बताया कि ये डॉसियर अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सरीन के हवाले किया गया। आपको बताएं कि भारतीय फ़ौज की फायरिंग से गुज़श्ता रोज़ 4 बच्चे शहीद हो गए थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया है कि पाकिस्तान ने खूई रट्टा में 4 बच्चों की शहादत पर अक़वाम मुत्तहिदा से तहकीकात की दरख्वास्त की है और इस सिलसिले में मुबस्सरीन के हवाले एक डॉसियर किया गया है। खबर यह है कि दिफाई नुमाइश आइडियाज 22 नवंबर से शुरू होगी। 34 ममालिक की 418 कंपनियां स्टॉल्स लगाएंगी। अल खालिद टैंक, JF-17 सुपर मशाक एयरक्राफ्ट, मिसाइल बोर्ड्स भी पेश होंगी। अब देखते हैं इस हवाले से कफायत अली की रिपोर्ट। कराची में मुल्क की सबसे बड़ी दिफाई नुमाइश। आइडियाज 2016 की तैयारियां उरूज पर। 43 ममालिक से 90 वफूद नुमाइश में शरीक होंगे। डायरेक्टर मीडिया डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन कमोडोर ताहिर जावेद ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि नुमाइश में 34 ममालिक की 418 फर्म्स अपनी मसनूआत पेश करेंगी। 90 foreign delegations from 43 countries comprising 256 delegates across the globe have accepted invitation to grace Ideas 2016, of which 30 delegations are high level, headed either by defense ministers, defense secretaries, chiefs of defense staff or services chiefs of the respective countries. इस मौके पर ब्रिगेडियर वहीद मुमताज का कहना था कि मुख्तलिफ ममालिक इंसदादी दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान के तजर्बे से फायदा उठाना चाहते हैं। नुमाइश में 14 MOUs पर दस्तखत होंगे। डिफेंस से रिलेटेड हमारी 2 नुमायां मिनिस्ट्रीज हैं, एक है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। इस बार हमने ये कोशिश की है और जैसा दुनिया में होता है कि जब भी दिफाई नुमाइश हो तो कोशिश ये की जाए कि वो तमाम MOUs जो उस वक्त तक पेंड किए जा सकते हैं उस दिफाई नुमाइश में किए जाएं। आइडियाज नुमाइश में अल खालिद टैंक, JF-17 सुपर मशाक के 8 एयरक्राफ्ट, फास्ट अटैक एयरक्राफ्ट, मिसाइल बोट्स रखी जाएंगी। और पाकिस्तान के दिफाई सामान की तैयारी में बड़ी कामयाबी आपके साथ शेयर करें। पहली बुलेट और माइन प्रूफ फौजी गाड़ी तैयार कर ली गई है। 8x8 फौजी गाड़ी की आइडियाज 2016 में रूनुमाई होगी। पाकिस्तान के दिफाई सामान की तैयारी में एक और बड़ी कामयाबी। पहली जदीद तरीन 8x8 कसीरुल मकासिद फौजी गाड़ी तैयार कर दी गई। जदीद तरीन मल्टी रोल कॉम्बैट व्हीकल में कमांडर, गनर और ड्राइवर के साथ साथ 13 अफराद के बैठने की गुंजाइश है। 30 mm की मेन गन के साथ मुकम्मल रिमोट वेपन स्टेशन और फायरिंग पोर्ट्स दुश्मन की हर जारहियत से निपटने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। गाड़ी बैलिस्टिक और एंटी माइन प्रोटेक्शन की खुसूसियात की हामिल और मुकम्मल बुलेट प्रूफ है। इर्द गिर्द की सूरत हाल से आगाही के लिए कैमरे और डिजिटल स्क्रीन्स नस्ब हैं। 8x8 फौजी गाड़ी कैवेलियर इंडस्ट्रीज और निजी शोबे के ताउन का शाहकार है, जिसे मुकम्मल पाकिस्तान में डिजाइन और डेवलप किया गया। गाड़ी आइडियाज 2016 में नुमाइश के लिए पेश होगी और रूनुमाई किसी और की भी होने वाली है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि वो जिला वतन नहीं अनकरीब पाकिस्तान आएंगे। इमरान खान के बारे में कहते हैं अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। एक इंटरव्यू में साबिक सदर ने कहा कि वो कुछ हफ्ते बाद पाकिस्तान में होंगे। इमरान खान की तरफ से एतजाज एहसन की तारीफ और उन पर तनकीद के सवाल पर आसिफ जरदारी ने जवाब दिया कि अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद और चांद का मतलब प्राइम मिनिस्टरशिप है। साबिक सदर ने यह भी कहा कि वो बिलावल के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कराची में कचरे की सूरत हाल पर शहरियों को जल्द खुशखबरी मिलेगी। बाप के बाद बेटे की बात करें। बिलावल भुट्टो ने मुल्की खारजा पॉलिसी को नाकाम करार दे दिया। कहते हैं पीपल्स पार्टी अपने 4 मुतालबात पर कायम है। दाता दरबार हाजिरी के दौरान अपने चचा के लिए दुआ भी की। जुल्कुलैन राना की रिपोर्ट।
लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल ने भारतीय जारहियत पर मुशीर खारजा की खामोशी पर तनकीद करते हुए खारजा पॉलिसी को नाकाम करार दिया और एहतसाब का मुतालिबा कर दिया। हमारा फॉरेन पॉलिसी जो है उसको भी हम चाहते हैं कि वो डेमोक्रेटिकली अकाउंटेबल हो। प्राइम मिनिस्टर है या फॉरेन मिनिस्टर है, वो कुछ कर नहीं रहे। बिलावल भुट्टो ने पंजाब में पीपल्स पार्टी की सियासी सरगर्मियां तेज करने का ऐलान किया। इमरान खान के हवाले से सवाल पर कहना था कि वो चाचा के लिए दुआ ही कर सकते हैं। चाचा के लिए मेरा दुआ। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के सिर्फ 4 मुतालबात हैं और वो नहीं मानते कि पीपल्स पार्टी का एक मुतालिबा माना गया है। कैमरामैन अबूजर अंसारी के साथ जुल्करनैन राना, दुनिया न्यूज़, लाहौर। कोई दुआ तो कोई दवा कर रहा है। काफ लीग अपोजिशन जमातों को एक पेज पर लाने की कोशिश करने लगी। परवेज इलाही का कहना है छोटे शहरों के लोग झोलियां उठाकर हुकूमत जाने की दुआएं कर रहे हैं। लाहौर से लियाकत अंसारी। जहांगीर बदर के इंतकाल पर उनके अहले खाना से ताज़ियत के बाद परवेज इलाही ने मीडिया से बात की। कहते हैं बड़े शहरों से बाहर जाकर देखें, लोग झोलियां उठाकर दुआ कर रहे हैं कि हुकूमत से उनकी जान छूट जाए। 15 साल इन्होंने हुकूमत की है और कोई इन्होंने अदारा नहीं बनाया। 8 साल तो इस हुकूमत पंजाब की हुकूमत को हो गए। कोई बता दें कि इन्होंने ऐसा काम किया हो जो कि एक आम आदमी और गरीब आदमी की बेहतरी की। उन्होंने कहा कि परवेज मुशर्रफ से अब भी ताल्लुक है। हालात वाक़यात बदलते रहते हैं मगर बंदे को नहीं बदलना चाहिए। तलक तो है, अब भी है तलक। हमारा तलक जिसके साथ होता है वो हमेशा अल्लाह के फजल से रहता है। हालात वाक़यात तो बदलते रहते हैं लेकिन बंदे को नहीं बदलना चाहिए। परवेज इलाही का कहना था कि पनामा केस सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए इस पर बात करना मुनासिब नहीं। कैमरा टीम के साथ लियाकत अंसारी, दुनिया न्यूज़, लाहौर। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि हमें तो अरब ममालिक से खजूरें ही मिलती हैं, ये कैसे हुक्मरान हैं जिनको स्टील मिल्स मिलती हैं। अज़्म का इजहार किया कि करप्शन करने वालों को अडियाला जेल पहुंचाएंगे। लाहौर से जाहिद आबिद की रिपोर्ट। सऊदी अरब हम भी आना जाना है, हमें तो किसी खजूर के अलावा और जमजम के अलावा और कोई चीज नहीं मिलती है। लाहौर मंसूरा में हुई उलमा मुशाइख कॉन्फ्रेंस के एलामिया में मुतालबा किया गया मुल्क भर में नफाज़े निज़ाम मुस्तफ़ा का, जाली पीरों के खिलाफ कार्रवाई का और मज़ारात की मुकम्मल हिफाजत के बंदोबस्त का। जाली पीरों से बरात का इजहार करते हैं जो कि गैर अखलाकी और गैर इंसानी सरगर्मियों में मुब्तला है, लिहाजा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और ऐसे अफराद के आड़ में अहले हक मशाइख की किरदार कुशी का मज़मूम सलसला बंद किया जाए। मीडिया टॉक में अमीर जमात इस्लामी ने पनामा केस पर की बात। उनका कहना था कि करप्शन करने वालों को अडियाला जेल पहुंचाएंगे। सिराजुल हक का कहना था कि हमें तो अरब ममालिक से सिर्फ खजूर और आब जमजम ही मिलता है, स्टील मिलें पता नहीं कैसे मिलती हैं। कतर तो हम भी आते जाते हैं, सऊदी अरब हम भी आना जाना है, लेकिन हमें तो किसी स्टील मिल किसी ने तोहफे में नहीं दिया। हमें तो किसी खजूर के अलावा और जमजम के अलावा और कोई चीज नहीं मिलती है। ये कैसे 2 ही खानदान है कि जिनको स्टील मिल भी मिलते हैं, तोहफे भी मिलते हैं और बड़े बड़े प्लेट्स भी मिलते हैं। उलमा कराम ने इस अमर पर इत्फाक किया कि मुस्लिम दुनिया की मुश्किलात का हल सिर्फ उम्मत की यकजहती में है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ जाहिद आबिद, दुनिया न्यूज़, लाहौर। वेलकम बैक। कराची के इलाके गुलशन मेमार में सरकारी इमारत पर 6 साल से काबिज सैलाब मुतासरीन और इंतजामिया के दरमियान दिन भर झड़पों के बावजूद मामला हल न हो सका। इंतजामिया ने 24 नवंबर तक की मोहलत दे दी है। मजीद बताएंगे ताहा उबैदी। हजार 2010 के सैलाब मुतासरीन से कराची की सरकारी इमारत खाली कराना हुकूमत के लिए चैलेंज बन गया। गुलशन मेमार के लेबर स्क्वायर को अदालती अहकामात मिलने के बाद खाली कराने हुकूमती मशीनरी पहुंची तो इमारत पर काबिज अफराद सड़कों पर निकल आए और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। काबजीन का मुतालबा था कि हुकूमत मुतबादिल जगह फराहम करे। मुतालबात हमारा यहाँ पे बोला जा रहा है कि काबिज हो गए हैं फ्लैटों में जो कि लेबर डिपार्टमेंट की है। हमने पहले भी कहा था ना हम पहले काबिज थे ना हम अब काबिज हैं। यहाँ पर बिलावल साहब का नारा कहा है रोटी कपड़ा और मकान, यानी बीबी मर गई उसके बाद नारा भी मर गया।
बिलावल साहब को कोई ये नारा याद नहीं आ रहा है अपनी माँ का कि रोटी कपड़ा और मकान। खामखा रेड लगाई हुई है 10 दिन से। पुलिस चारों तरफ है, गैस काटी गई है, बिजली काटी गई है, पानी बंद किया गया है। 5 घंटे तक एहतजाज करते काबजीन से इंतजामिया ने मुज़ाकरात किए और इमारत को खाली करने की मोहलत में तो उसी पर एहतजाज खत्म कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर मंगो पीर नजीर अबड़ो का कहना था कि मुतासरीन को 24 नवंबर तक की मोहलत दी गई है। 10 दिन से हम जो है कि कोशिश कर रहे थे कि इनसे नेगोशिएशन करें, इनको समझाएं और उसमें कामयाबी भी हुई है। 80% जो है लोग यहाँ पे चले भी गए हैं। जैकाबाद के, शिकारपुर, लाड़काना, इंटीरियर के जितने भी थे, कुछ चंद लोग इंक्रोचर रह गए हैं जो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इंसदादे तजावीज़ात सेल का कहना है कि सरकारी इमारत का 80% हिस्सा खाली करवा लिया गया है, जबकि 20% हिस्से पर माफिया काबिज है। कैमरामैन अब्दुल वाहिद खान के साथ ताहा उबैदी, दुनिया न्यूज, कराची। वक्त का तकाजा कहें कि प्रोटोकॉल की जरूरत। सिंध में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के लिए नई पाबंदियां आयद करती गई हैं। सीटीडी एहलकारों को अफसरों की इजाजत के बगैर गिरफ्तारियों से रोक दिया गया है। सिंध में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के गैर कानूनी छापों से परेशान आला पुलिस अफसरान ने सीटीडी के लिए नई पाबंदियां आयद कर दी। अब सीटीडी एहलकार दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर काम करें तो सीनियर पुलिस अफसरान को लाजमी आगाह करें। एडिशनल आईजी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने एहलकारों को पाबंद करने के लिए हिदायतनामा जारी कर दिया। हिदायतनामे में तंबीह की गई है कि सीटीडी एहलकार आला अफसरान को बगैर बताए न किसी को गिरफ्तार करें, न ही हिरासत में लें। सीटीडी एहलकारों के खिलाफ पाबंदियों का फैसला शिकायत की रोशनी में किया गया है। ताहा उबैदी, दुनिया न्यूज, कराची। मछली मंडी का मुहावरा ऐसे ही मशहूर नहीं, यहाँ के रंग ढंग निराले हैं। रात के अंधेरे में ये मंडी सजती है और बोली लगती है। रावलपिंडी में कायम तारीखी मछली मंडी का अहवाल बता रही हैं आयशा खान। 800, 63 आई। रावलपिंडी की तारीखी मछली मंडी की रौनकें भी लौट आई। रात को यहाँ दिन का गुमान होता है। 7,000। रेट खुलता है तो शहर शहर मछली का कारोबार चलता है। ये मछली का बाजार पाकिस्तान बनने से पहले का है। यहाँ पहले फ्रूट मंडी और मछली की जो मंडी इकट्ठी थी। व्यापारी कहते हैं कोई इसे दरिया की मछली कहकर बेचे तो यकीन हरगिज न करना। ताज़ा मछली खरीदने के लिए पहचान होना भी जरूरी है। दरिया तो अब खत्म हो गए हैं, तो ज्यादातर फार्म की मच्छी है। तो ये जो फरोख्त करते हैं ये दरिया की मच्छी बना देते हैं, रावल डैम की बना देंगे, लेकिन बेसिकल ये सब फार्म की मच्छी होती है। ताज़ी मछली की पहचान ये इनकी आइस से चेक किया जाता है, फ्रेश हो, गिल्स चेक किए जाते हैं, रेड हो और इनके पेट चेक किए जाते हैं। जल की रानी यहाँ आती है तो रात के अंधेरे में ही हाथों हाथ बिक जाती है। आपको भी ताज़ा मछली चाहिए तो चले आइए मछली मंडी। कैमरामैन काशिफ बाजवा के साथ आयशा खान, दुनिया न्यूज, रावलपिंडी। हद तो यह है कि वज़ीर आला नोटिस ले तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लाहौर में डाकुओं के हाथों बाप बेटे समेत 4 अफराद का कत्ल। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए वज़ीर आला पंजाब की डेडलाइन खत्म हो गई। कातिल गिरफ्तार ना हो सके, ना ही तफ्तीश में किसी किस्म की कोई पेशरफ्त हुई। शहबाज शरीफ ने 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की गई थी, लेकिन अभी तक इस केस में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। कल निहायत बेईमाना तरीके से लाहौर में डाकुओं ने बाप बेटे समेत 4 अफराद को कत्ल किया था। वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया था, 24 घंटे की डेडलाइन दी थी, वो डेडलाइन खत्म हो गई लेकिन कोई गिरफ्तारी न हो सकी। खेलन को मांगे चांद का मतलब प्राइम मिनिस्टरशिप। आसिफ जरदारी ने इमरान खान को अनोखा लाडला करार दे दिया। चंद हफ्ते बाद वतन वापसी का ऐलान। कहते हैं बिलावल के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। पनामा केस में पीटीआई ने बाबर आवान से उम्मीद लगा ली। इमरान खान ने वकील मुकर्रर करने का फैसला कर लिया। नईमुल हक की तस्दीक।